Yesterday we have discussed the topic of BFS, breadth first search. Breadth first search, BFS, depth first search, bidirectional search, A-star algorithm, heuristic algorithm. Those topics is most important in artificial intelligence. And today we discuss DFS, depth first search, and bidirectional search in artificial intelligence. And also here the 8 puzzle program. There are two types of 8 puzzle program. One is without heuristic, and another is we use heuristic to search 8-star problem. So next, in BFS we discuss breadth first search is an algorithm that used to graph data or searching tree, or the full form of BFS is breadth first search. The algorithm efficiently visit and mark the मैंने बोला था क्या क्या the algorithm efficiently visit and mark all the keynotes in a graph in an accurate breadth-wide fashion. This algorithm select a single node in a graph and then visit all the nodes adjacent to the selected node. Remember, BFS access these nodes one by one. And fulfill all the nodes in a graph or tree, and basically is took large time because they visit one by one accordingly and find the goal path which the sender needs. Once the algorithm visit and mark the starting nodes, then it moves towards the nearest unvisited nodes and analyzes them. One visited, all nodes are marked. This iteration continue until all the nodes of the graph have been completed successfully and marked it. And the architecture of BFS algorithm, in the various level of data, you can mark any nodes of the starting or initial nodes to the begin transverse. The BFS will visit the nodes and mark it as visited and place it the queue. Now BFS will visit the nearest and unvisited nodes and mark them. These values are also added of the queue, and the queue works on FIFO model. Okay. So yesterday we discussed the BFS. The main part of BFS is uninformed search techniques. It is also called blind search because there is no goal path indicate and no help the searching process. So there is the blind search where searching table did not find the goal path and they completed the graph one by one accordingly. BFS will visit the nearest and unvisited nodes and marks them. These values are also added to the queue. The queue works on the FIFO model. FIFO model queue works on FIFO model. What is FIFO model? FIFO model matlab fast in, fast out. And here we see this in the queue process. We insert the first nodes A, and when we exit the node A, we find the 3 branches of a node B, C, D, and next we started the process fast in and fast out process. So here B nodes in fast in, and then we obviously the fast out node is B, and B derive E branches E and F. So here E and F is in, and next the
nodes C is out, and then GH is in, and next D out, and D का जो path है I is in. ठीक है, तो इस तरीके से फास्ट इन फास्ट आउट काम करता है। जो भी हम लोग नोड इंसर्ट करते हैं उसका फास्ट जो इन होता है वो फास्ट आउट होता है। इस तरीके से वन बाय वन ये कंप्लीट करता है, और हम लोग को एक जो गोल पथ है वो गोल पथ मिल जाता है। समझो यहाँ पर हम लोगों को एल सर्च करना है। एल सर्च करने के लिए हमारा गोल पथ क्या होगा, उसका जो रूट नोड है, which root node contain the path where the nodes L moves on। तो यहाँ पर क्या होगा, नोड्स गोल पथ अगर L हो तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ACGL, because this is the root node of L and the path of L is A array C फिर G फिर L। ठीक है, and slowest node BFS is the slowest node because BFS find all the path one by one and travel all the nodes one by one. This why BFS will take time in a huge, so BFS is slowest because one by one a sub node search करता है। एंड कंप्लीट प्रोसेस हम लोग क्यों बोलते हैं, मैंने बोला पहले दिन, क्योंकि ये हर एक नोड को सर्चिंग करता है, इसलिए इसको हम लोग कंप्लीट प्रोसेस कहते हैं। ऐसे स्टार्ट होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, हर एक नोड को सर्च करता है। In a similar manner, the remaining nearest and non-visited nodes on the graph are analyzed, marked, and added the queue. These items are deleted from queue and received and printed as the result. Why we use BFS? BFS is useful for analyzing the nodes is a graph and constructing the shortest path of traversing through this. BFS can traverse through a graph in the smallest number of iteration. The BFS architecture, the architecture of BFS algorithm is simple and robust. The result of BFS algorithm holds a high level of accuracy in comparison to the other algorithm. ठीक है, and next we discuss DFS. What is DFS? DFS क्या है बोलो? DFS means depth first search. DFS is also an important type of uniform search, uninformed search. DFS visited all the vertical in the graph. All the vertical in the graph, these types of algorithm always choose to go deeper into the graph. These types of algorithm always choose deeper in the graph. हम लोग जब BFS कर रहे हैं तो BFS का जो सर्चिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ऐसे होता है, ABCDEFGH करके एक एक नोड को ट्रैवल करता है। लेकिन DFS में ऐसा नहीं होता, वो फाइंड करता है डीपेस्ट नोड। वो एक तरीके के सर्च करेंगे, वो क्या करेंगे, जो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो डीप, इसका जितना डीप हो सके वो डीपेस्ट नोड को सर्च करेंगे। फिर अगर उसको नहीं मिला गोल पाथ तो रिटर्न करेगा, रिटर्न करके उसका लेफ्ट राइट नोड पे आएगा। फिर राइट नोड पे अगर नहीं मिला फिर रिटर्न करेगा, फिर वो बाहर जाएगा। ठीक है, तो DFS का मेन फंडा यही है। DFS also an important types of uniform search or uninformed search. DFS visit all the vertex in the graph. These types of algorithm always choose to go deeper into the graph after DFS visited all the reachable verticals from a particular source verticals. It choose one of the remaining undiscovered vertical and continue to search. DFS remind the space limitation of breadth first search by always generating next a child of the deepest unexpected node. The DFS structure stack or last in last out.
डीएफएस स्ट्रक्चर कैसा काम करता है, वो लास्ट इन लास्ट आउट में, यहाँ पर क्या था, फास्ट लास्ट इन फास्ट आउट में काम करता है। यहाँ पर था फास्ट FIFO था, फास्ट इन फास्ट आउट, और यहाँ पर एक काम करता है लीफ ओवर, लास्ट इन फास्ट आउट, ठीक है। तो जो लास्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा। समझो यहाँ पर हम लोग क्या इंसर्ट करेंगे, बी सी, ये अगर हमारा पेरेंट्स नोड है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बी सी, सी अगर लास्ट इन होगा तो सी फर्स्ट आउट होगा। और हम लोग कर सकते हैं इसका राइट साइड से भी हम लोग सर्च करते हैं, राइट साइड से हम लोग अगर सर्च करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सी बी, मतलब सी को फर्स्ट इन करेंगे फिर बी को, देन वी इन बी। तो बी अगर लास्ट इन होता तो फर्स्ट आउट हो जाएगा। इसलिए हम लोग अगर ये सर्च करेंगे बीएफएस में, तो बीएफएस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लास्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। तो देखो, द डेटा स्ट्रक्चर स्टैक और लास्ट इन फर्स्ट आउट इज यूज्ड फॉर डीएफएस। One interesting property of DFS is that the discover and finish time of each vertex from a parenthesis structure. If we use on one upon parenthesis when a vertex is finished, then the result is properly nearest set and parenthesis. यहाँ पर क्या होता है, देखो, डीएफएस भी एक क्या है, अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है। बिकॉज इन डीएफएस वी स्टार्टिंग ए सर्चिंग process, this is right or left. If we searching the goal path in left and the result or the goal path is right side, then we find the blind process, and here we did not find the goal path, so it is also a uninformed search technique, because यहाँ पर हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि गोल पथ कहां पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम करता है, स्टैक में काम करता है, मैंने वो बोला लास्ट इन फास्ट आउट। डीपेस्ट नोड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डीएफएस इज डीपेस्ट नोड। डीपेस्ट नोड हम लोग डीएफएस को क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सर्च होता है वो एक नोड को लेके सर्च होता है। समझो यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर तो ए अगर एक पेरेंट नोड्स है, तो यहाँ का रूट क्या है, चाइल्ड नोड क्या है, ए एंड बी। अगर ए नोड से सर्चिंग स्टार्ट करे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर बी नोड पे इसका रिजल्ट है तो ये तो ए नोड पर सर्च करता ही रहेगा। ए नोड, अगर ए नोड का जो चाइल्ड है वो अगर इंफिनिटी तक रहेगा तो ये सर्च कर एन तक ये सर्च करता ही रहेगा, इस तरीके से एन तक वो सर्च करता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डीपेस्ट नोड। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डीएफएस को हम लोग इनकम्प्लीट क्यों कहते हैं, बिकॉज समझो डीएफएस में वो अगर सी नोड, सी जो चाइल्ड है उस नोड पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है, और सर्च करते करते अगर वो एक सर्कल में पड़ गया, सर्कल में मतलब समझो एक एन वर्टिकल एन चाइल्ड तक एक नोड है, उस पे एक सर्कल है, सर्कल पे वो गोल बाय गोल घूम रहे हैं, तो उसको क्या होगा, वो वहां से वापस नहीं आएगा, तो उसमें क्या होगा, वो बी नोड सर्च नहीं कर पाएगा, और सी नोड के भी जो राइट में है वो भी सर्च नहीं कर पाएगा। तो ये इस नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट बोलते हैं। और क्या होगा, और समझो जो इसका जो चाइल्ड पाथ होगा, अगर चाइल्ड पाथ में एन नंबर तक चाइल्ड रहेगा, अगर एन नंबर तक चाइल्ड रहेगा तो उसका तो सर्च कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट। एंड नॉन ऑप्टिमल, नॉन ऑप्टिमल मतलब क्या, अगर डीएफएस में हम लोग गोल पाथ तक पहुंच जाए और गोल पाथ हम लोग सर्च कर लिए, फिर भी हम लोग क्या, समझो हम लोग बी पर सर्च कर रहे हैं लेकिन उसका गोल पाथ सी पर है, तो बी कंप्लीट करके सी पर हम लोग जब जाएंगे
तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसका रिजल्ट का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। तो और अलग सा कोई प्रोसेस होगा जिसमें हम लोग कम वैल्यू में वो गोल पथ सर्च कर पाए, तो इसलिए हम लोग इसको नॉन ऑप्टिमल कहते हैं। नॉन ऑप्टिमल मतलब इसका जो सर्चिंग वैल्यू है वो ऑप्टिमल नहीं है, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डीएफएस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर डीपेस्ट नोड है, डीपेस्ट नोड में हम लोग यहाँ पर कितना हो सकता है समझो, ऐसा या तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीएफएस में डीएफएस में होता है बिग जीरो वी प्लस ई नोट्स प्लस एच, लेकिन इन एआई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बी जीरो डी टू बी टू दावर डी, बी मतलब ब्रांचिंग फैक्टर एंड डी डीपेस्ट नोड। अगर डीपेस्ट नोड 20 हो गया और ब्रांचिंग फैक्टर 3, ठीक है, तो इसका क्या सर्च आ सकता है 3 टू द पावर 20, 3 टू द पावर 20 मतलब मिलियन तक सर्च हो जाएगा। अगर मिलियन तक सर्च हम लोग यहाँ पर करते रहे तो इसका क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। डॉली कुमारी, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो, डीएफएस को हम लोग अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्यों बोलते हैं? Because sir, in DFS we don't know which path is optimal. Because suppose there is a tree in which there are two branches E and F, and we are searching for E. But if our goal node is in F, and firstly we have to complete all the nodes which is connected with E. Then again we have to go in F. So the result will be very big in this case. ओके, एंड डीपेस्ट नोड हम लोग क्यों बोलते हैं? Because it firstly go to the deepest child of any root. ओके, मरगान राज मानू। यस सर। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? सर डीएफएस में इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा या ज्यादा होगा? और ज्यादा होगा तो क्यों होगा, ये बोलो जस्ट। सर ज्यादा तो होगा पर क्लियर नहीं हो सर ठीक से। क्योंकि देखो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यहाँ पर क्या बोला, समझो बीएफ इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर बीएफएस हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में कैलकुलेट करें तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग जीरो वी प्लस ई नोट्स प्लस एच, लेकिन इन एआई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बीएफएस is big zero b to the power d, and here b is a branching factor and d is a depth. If the branching factor is 3 and the depth is 20, depth is 20 matlab a is 0 starting path and then c is 1 deepest, g is 2, इस तरीके से अगर 20 तक है, समझो यहाँ पर 20 तक है इन नोड्स, तो हियर b टू द पावर d मतलब 3 टू द पावर 20, 3 टू द पावर 20 का वैल्यू है मिलियन तक। तो अगर मिलियन तक वैल्यू हो जाए तो सर्चिंग में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, इस टेक मोर टाइम, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉम्प्लिकेटेड एंड इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। यस सर। एंड सुभाष, Yes, sir. तुम बोलो, why we called DFS is incomplete search? It doesn't search for each and every branch. Why? Why it does not search each and every branch, every nodes? Because nodes. Yeah, because it just take a specified branch, a node, like just
as example is given us, one is the main root node is A and sub node is B and C. So in this, only it will search for C node till it or we goes to the also deepest part. say, if the searching table is fall into a circle, or in here is in infinite search, अगर हम लोग infinite search में पड़ जाए, ठीक है, समझो the Infinite nodes of loop. हाँ loop और infinite search मतलब समझो the nodes of C child is an n number of nodes, ठीक है, left side of A branches is n number of nodes contain, that's the searching table is long and we did not find because the n number of nodes is very difficult to complete the search, ठीक है. यहाँ पर मैंने बोला था सर इन्फिनिट भी होता है सर, मुझे तो पता नहीं था सर. इन्फिनिट होता है, समझो n नंबर तक है. सर जहाँ तक कि मुझे पता है कि वो एक लूप पे लेता है, लूप पे लेके हम लोग उसको लूप पे भी इसको हो लूप को सकता है. लेके हम लोग इन्फिनिट मारते हैं, यहाँ पर लेकिन लूप ये नहीं मानते हैं. देखो, यहाँ पर लूप भी हो सकता है और इन्फिनिटिव भी हो सकता है, ठीक है. लूप तो हो सकता है लेकिन इन्फिनिटिव, समझो n नंबर तक तुम्हारा नोड्स है, ये तो हो सकता है ना, n नंबर तक नोड तो हो सकता है. तो अगर n नंबर तक नोड्स है तो तुम कितना देर तक सर्च करोगे. और यहाँ पर मैंने क्यों बोला, देखो BFS में भी n नंबर तक नोड्स हो सकता है, लेकिन DFS में हम लोग n नंबर तक नोड्स है और सर्चिंग प्रोसेस इज इनकम्प्लीट. व्हाई? बिकॉज इन BFS is searching one by one nodes, but in DFS is searching the deepest node in one branching vector. So if the goal path is in another branching vector, then where we search in goal path, we did not find the goal nodes. ठीक है. हेलो, यस सर, समझ गया. मालूम हुआ क्यों बोलते हैं. देखो BFS में भी तो n नंबर तक नोट्स हो सकता है एंड DFS में भी n नंबर तक नोट्स हो सकता है, लेकिन BFS में हम लोग कंप्लीट बोल रहे हैं, लेकिन DFS में हम लोग इनकम्प्लीट क्यों बोल रहे हैं. बिकॉज इन BFS द सर्चिंग प्रोसेस इज कंटिन्यू वन बाय वन नोट्स, ठीक है. तो वो तो अगर जो गोल पाथ है वो तो रास्ते पे भी होगा, कहीं ना कहीं होगा, तो वो तो सर्च कर लेगा. लेकिन इन DFS we search in one branching vector, and if the result is or goal path is in another branching vector, then the searching process is totally lost, totally worst case, because हमारा जो result है वो तो इस टाइप माने इस साइट पे है और हम लोग सर्च कहां पर कर रहा है, इस साइट पे सर्च कर रहा है, तो हम लोग तो रिजल्ट नहीं मिलेगा. लेकिन इन BFS समझो हम लोग सर्च कैसे करता है, इन BFS वी सर्चिंग वन बाय वन नोड्स. तो अगर यहाँ पर भी रिजल्ट होगा और यहाँ पर भी रिजल्ट होगा, हम लोग तो वन बाय वन सर्च कर रहे हैं, तो वो तो हम लोग को मिल ही जाएगा, ठीक है. लेकिन इन DFS वी सर्चिंग इन वन ब्रांचिंग वेक्टर एंड डीपेस्ट नोड. So if the result or goal nodes is in right side and we searching and process is in left side, then we can't find the goal path or the result. That's why we call DFS is incomplete. और यहाँ पर एक loop भी हो सकता है. अगर we follow in a loop process, then we can't find the result because the result is in right side and we find the nodes in left side, ठीक है. ये तो हो गया, इसमें मेन पॉइंट्स यही है. एंड इसमें देखो जो BFS है, BFS में यहाँ पर देखो इसका प्रोसेस कैसे होता है, सर्चिंग प्रोसेस. समझो यहाँ पर क्या है, ये एक रूट नोड है, इसको हम लोग रूट नोड बोलते हैं, एंड B एंड C यहाँ पर एक चाइल्ड नोड है, ठीक है. A is a root node and B and C is a child node. First we starting in searching process B and C and C and B. Here first in last out.
फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो इफ वी कैलकुलेट दिस नोट, यहाँ पर क्या है, लास्ट इन लास्ट सी, बी फर्स्ट, सी लास्ट, तो एंड यहाँ पर क्या है, सी लास्ट बी फर्स्ट। तो हम लोग अगर इस नोट को सर्चिंग में यूज करेंगे तो क्या होगा, सी लास्ट इन हुआ है इसलिए सी को हम लोग आउट करेंगे। सी को आउट करने के बाद हम लोग क्या यहाँ पर लिखेंगे, एफ एंड जी। देखो राइट साइड से हम लोग, देखो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी डिस्कस हियर, बिकॉज हियर वी स्टार्टेड इफ बी और सी, हम लोग जो भी चाहे यहाँ पर नोट से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैंने बी और सी से ले सकते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग सी और बी से भी ले सकते हैं, वो तुम जो चाहे कर सकते हो, लेकिन हम लोगों का एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। समझो इस टेबल हम लोग अगर रेडी करते हैं तो हम लोग को बी से सी अगर यहाँ पर किए तो इसमें भी बी से हम लोग सी तक करेंगे, मतलब एफ से जी तक करेंगे। नहीं तो यहाँ पर मैंने बी से सी तक किया, पहले बी को इन किया फिर सी को इन किया, और यहाँ पर पहले मैं जी को इन किया, एफ को फिर एफ को इन किया, तो इसमें गलत हो जाएगा। एक ही प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, वी फॉलो वन प्रोसेस, बिकॉज इन वन प्रोसेस वी फाइंड द रिजल्ट इन क्विकली, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस प्रोसेस फॉलो करेंगे, पहले बी एंड सी, तो सी यहाँ पर लास्ट इन है, लास्ट इन तो लास्ट आउट होगा, तो अगर सी हम लोग यहाँ पर आउट हो जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एंड जी, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या बी पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, एफ पुट करेंगे, देखो, ठीक है। फिर हम लोग क्या पुट करेंगे, सी मतलब जी को पुट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग का क्या है, जी लास्ट इन है, तो जी तो हम समझो जी हमारा गोल स्टेट नहीं है, और ये ब्रांचिंग फैक्टर यहीं तक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी रिटर्न करेगा किस पर, जी पर, जी रिटर्न करेगा सी पर। लेकिन समझो यहाँ पर पहले तो मैंने लिख लिया, यहाँ पर ए लिखा, ठीक है, फिर बी तो ए पहले था, सी यहाँ पर आउट कर रहे हैं तो सी हमने लिख दिया, फिर जी आउट कर रहे हैं तो जी हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हम लोग सी लिखेंगे क्योंकि सी पर ए नोट आ रहा है, लेकिन सी तो हम लोग पहले ही लिख दिया, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, फिर ए इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा मतलब एफ लिख देंगे, फिर यहाँ से आउट हो जाएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा तो फिर ए पे आएगा, यहाँ पर ए पे तो मैंने ए तो पहले ही लिख दिया, फिर यहाँ पर बी तक जाएगा, बी तक अगर चला गया तो बी को आउट, बी आउट होगा, ठीक है। अगर बी आउट हो गया तो क्या आ जाएगा, डी एंड एफ, ठीक है। तो डी पहले मैंने लिख दिया, फिर मैंने ई लिखा, एफ सॉरी ए ई होगा, मैंने ई लिख दिया। तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, ई को आउट करूंगा, फिर डी को आउट करूंगा, ठीक है। तो मेरा जो सर्चिंग जो पाथ होगा तो इस तरीके से होगा, ए सी जी एफ बी ई डी, ये मालूम हुआ। देखो एक बार देख लो, डीएफएस में हम लोग जो सर्चिंग प्रोसेस यूज करते हैं, तो सर्चिंग प्रोसेस क्या है वो देख लो, फिर मेरे को बोलना प्रॉब्लम हुआ तो। डॉली कुमारी, यस सर, क्लियर है। समझ में आया। यस सर। सुभाष, यस सर। ये कुछ भी नहीं है, ये इसका जो सर्चिंग प्रोसेस होता है वो वन साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो ये हम लोग सीबी से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बीसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे, एक ही नोट, एक ही ट्री पर और एक ही ग्राफ पर हम लोग एक ही रूल्स फॉलो करेंगे। तो पहले हुआ बीसी, बी सी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सी आउट हो गया, सी आउट हो गया तो ए के बाद हम लोग सी लिख देंगे, सी के बाद क्या होगा, एफ जी, जी लास्ट, तो जी आउट हो गया, जी अगर आउट हो गया तो क्या होगा, ये सी पे रिटर्न करेगा, सी पर रिटर्न करेगा, लेकिन सी पे हम लोग क्या है, सी तो हम लोग यहाँ पर लिख दिया,
तो अगर सी पे रिटर्न करेगा तो क्या हो जाएगा, वो एफ जो फैक्टर है, एफ ब्रांचेस और एफ नोड है, तो एफ नोड पर वो ट्रैवल करेगा। एफ नोड पर ब्रांचिंग फैक्टर नहीं है तो रिटर्न करेगा सी पर। सी तो लिख दिया, सी से वो ए तक फिर रिटर्न करेगा। ए तो यहाँ पर हो गया, ए लिख दिया था, फिर वो बी तक जाएगा। बी तक अगर गया तो बी को आउट करेगा। बी अगर आउट हो जाएगा तो डी और एफ, फिर वो ई सॉरी डी और ई को इन करेगा, ई को सॉरी ई आउट हो जाएगा, फिर वहां पर एक ही ब्रांचिंग फैक्टर रहेगा और एक ही नोड ओ डी। तो अगर ए नोड्स छोटा है तो इसमें फाइंड करना बहुत इजी है, लेकिन अगर ए नोड बड़ा होता जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, डिफिकल्टीज आएगा। अगर एन नंबर तक होगा तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डीएफएस में यही है। फिर क्या है, बाई डायरेक्शनल सर्च। बाई डायरेक्शनल सर्च क्या है, बाई डायरेक्शनल सर्च होता है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टू टाइप से हम लोग यहाँ पर सर्चिंग प्रोसेस चालू करते हैं, ठीक है। मतलब समझो, मैं अगला दिन ही बोले थे नेक्स्ट क्लास में, समझो दोनों फ्रेंड का घर है, ठीक है। यहाँ पर बीएफएस और डीएफएस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फ्रेंड तो उसके घर पे है और एक फ्रेंड क्या कर रहा है, वो ट्रैवल करके उसका घर जा रहा है, ठीक है। तो एक फ्रेंड का जो प्लेस है वो फिक्स्ड है और एक फ्रेंड ट्रैवल करके उसका घर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बाई डायरेक्शनल सर्च पे क्या होता है, दोनों ही सर्च ये ट्रैवल करता है और दोनों मूव करता है, इसलिए इसको हम लोग बाई डायरेक्शनल। समझो एक का घर है चाईबासा पर, एक का घर है टाटा पर, वो दोनों ट्रैवल करके क्या करेगा, एक मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है। वो मिडिल पॉइंट जो भी होगा, समझो वो मिडिल पॉइंट चक्रधरपुर हो या जो भी हो, तो वो क्या करेगा, उस पॉइंट पे दोनों जाके मीट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगा, ऑप्टिमल रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। ऐसा बहुत ही फायदा होता है, इसलिए वो दोनों ट्रैवल करता है। तो इन बाई डायरेक्शनल सर्च, searching a graph is quite famous problem and have a lot of practical issue. We have already discussed here how to search for a goal vertex starting from a search vertex using BFS. In normal graph using BFS and DFS, we begin our search in one directional, usually from source and vertex towards goal vertex. But what if we start search from both directional सिमुलटेनियसली, मतलब दोनों डायरेक्शन से वो एक साथ वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, करेगा सर्चिंग प्रोसेस। इन बाई डायरेक्शनल सर्च इज ए ग्राफ सर्च एल्गोरिथम व्हिच फाइंड स्मॉलेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू गोल। यहाँ पर क्या होता है, सोर्स टू गोल पे एक स्मॉलेस्ट पाथ क्रिएट होता है और स्मॉलेस्ट पाथ में वो विजिट करता है, ठीक है। समझो यहाँ पर एक नोड है ए से 9 तक, ए स्टार्ट नोड है और 9 गोल नोड है। तो यहाँ पर क्या करेगा, स्टार्ट नोड ए है तो ए क्या करेगा, यहाँ से भी ट्रैवल कर सकता है और यहाँ से भी ट्रैवल कर सकता है, और ए भी क्या कर सकता है यहाँ से, और ए भी यहाँ से ट्रैवल, और फिर 5 पर जाके वो दोनों मीट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर देखो, बी डी टू द पावर 2 प्लस बी डी टू द पावर 2। तो यहाँ पर एक हम लोगों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगा और यहाँ पर हम लोग का एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 बी टू द पावर डी बाई 2, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल सर्च में टू सिमुलटेनियस सर्च फ्रॉम ऑन इनिशियल नोड्स टू गोल एंड बैक, and from goal nodes to initial node and stopping when 2 meets, and completeness breadth first search and deepest first search may or may not, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेन यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। इन सर्च टेक्निक when two graphs intersect, just like A star algorithm, bidirectional search can be guided by a heuristic estimate of remaining distance from source to goal and vice versa for finding shortest path possible, ठीक है। तो
why we use in bidirectional search? Because in many cases it is faster, it dramatically reduce the amount of required exploration. हम लोग BFS और DFS में जिस तरीके से ब्रांच फैक्टर हम लोग का एक बहुत ज्यादा हो रहा था और जो सर्चिंग प्रोसेस था वो बहुत बड़ा हो रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सर्चिंग प्रोसेस बहुत ही कम हो जाएगा एंड जो पाथ हम लोग सर्च कर रहे हैं तो बायडायरेक्शनल सर्च में क्या होगा, और सर्चिंग पाथ बहुत घट जाएगा. इन सपोज इफ ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ ट्री इज b and distance of goal vertex from source is d, then the normal BFS and DFS searching complexity would be big 0 b to the power d. हम लोग क्या कर रहे थे इन BFS एंड DFS में, मैं पहले जो बोला इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, बिग 0 b to the power d, एंड यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी बिग 0 b to the power d. लेकिन on the bidirectional search, one part is completed the path, here the time complexity is b d to the power 2 big 0 यहाँ पर होगा, and another part is b d to the power 2, so the is far less than in b d to the power d, तो उससे बहुत ही कम हो जाएगा. ठीक है. When we use bidirectional approach, both initial and goal state are unique and completely defined. अगर both जो starting point है and जो goal point है अगर वो unique हो and completely defined, मतलब ये uninformed search नहीं होगा. ठीक है. हम लोग BFS and DFS में क्या कर रहे थे, uninformed search कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर uninformed search नहीं होगा. यहाँ पर वो जो इनिशियल एंड जो गोल स्टेट है वो यूनिक एंड कंप्लीटली डिफाइंड होना चाहिए, एंड द ब्रांचिंग फैक्टर इज एग्जैक्टली द सेम इन बोथ डायरेक्शन, एंड द ब्रांचिंग फैक्टर इज एग्जैक्टली इन सेम इन बोथ डायरेक्शन. ठीक है. देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इन ब्रांचिंग फैक्टर इज एग्जैक्टली सेम इन बोथ डायरेक्शन, बिकॉज समझो यहाँ पर एक ब्रांचिंग फैक्टर है और यहाँ पर एक अलग ब्रांचिंग फैक्टर है. तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल पे तुम लोग को बोलता हूँ. समझो टाटा से कलकत्ता जाने के लिए एक तो NH6 है, तो अगर NH6 से ही दोनों जाएंगे तो एक मिडिल पॉइंट पे वो मीट हो सकता है. लेकिन समझो एक टाटा रांची होके बर्धमान होके घूम के कोलकाता जा रहे हैं और एक NH6 पकड़ के सीधा जा रहे हैं, तो वो दोनों के बीच में तो कभी भी मीट नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि उसका दोनों साइड का तो प्रोसेस आलादा है, डिफरेंट है. ठीक है. उसका दोनों साइड का जो प्रोसेस है तो दिस इज डिफरेंट. सो अगर दोनों साइड का जो ब्रांचिंग फैक्टर है अगर वो डिफरेंट हो जाएगा तो वो दोनों में कभी भी मुलाकात नहीं होगा. तो इसलिए बोल रहे हैं बोथ इनिशियल एंड गोल स्टेट आर यूनिक एंड कंप्लीटली डिफाइंड, and the branching factor is exactly the same in both direction. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. इसमें क्या है, ये दोनों टू टाइप से एक साथ स्टार्ट करेंगे, एक बीच में उसका मीटअप हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका जो ब्रांचिंग फैक्टर था वो दोनों हाफ हाफ हो जाएगा. और इसमें प्रोसेस क्या है, ये कंप्लीट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, और इसमें एग्जैक्टली ब्रांचिंग फैक्टर इज एग्जैक्टली द सेम इन बोथ डायरेक्शन. बोथ डायरेक्शन में जो ब्रांचिंग फैक्टर है उस एक होना चाहिए. ठीक है. तो ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. फिर हम लोग डिस्कस करेंगे 8 पजल प्रॉब्लम विदाउट हेयरिस्टिक एंड विथ हेयरिस्टिक. ये 8 पजल प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वो हेयरिस्टिक वैल्यू यूज करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और विदाउट हेयरिस्टिक वैल्यू यूज करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करूंगा. ठीक है. ठीक है, चलो आज यहीं तक. Thank you, sir. Thank you, sir. एक बार घर में देख लेना है. ठीक.